Should we start? So, situation number one, both my y and x are continuous data. You typically end up using the scatter plot in a situation where both my y and x are continuous data. We go to graph and we use the scatter plot. That's the first option that we always use, scatter plot. Always advisable to use scatter with regression. Here you are studying whether your x and y are related to each other or not. Purana wala thought, an upward moving regression line will say positive correlation, downward moving line will say negative correlation, a line parallel to this x-axis will mean no relationship at all. Everyone? पॉजिटिव कोरिलेशन, इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्शन के बढ़ने से मेरा ब्रेकेज बढ़ रहा है. So let's say या मैं कुछ दूसरा पकड़ लेता हूं. एज ऑफ माई कार एंड माइलेज ऑफ माई कार. When my car was 1 year old, it gave me a mileage of let's say 30. जब वो 2 साल की हो गई, then it started giving me a mileage of 28. मैं जानबूझ के रिड्यूस कर रहा हूं. So if I am using this to draw a scatter plot for myself, I will have a downward moving line. बिल्कुल लाइन बन के आ रहा है, which is moving downwards. अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं, if I go back to my data and I change it, if I show that it is moving upwards, so upward moving line in the scatter plot would mean with the increase of x मेरा y increase होता है. A downward moving line will mean with the increase of so a downward moving line will mean that negative correlation है. Upward moving line will mean positive correlation है. Simple है ये. Scatter plot additionally gives you the information of R square. It also gives you the transfer function. Everyone can see this? Can you see the R square value here? 91%. When I click the blue line, it has also given me a transfer function. Mileage equals 34.00 minus 3.2 times of the age, and my R square is 91%. ठीक है, यहां तक सिंपल है. Next I have the matrix plot, which is multiple scatter plots put into one. अगर आपको एक बार में एक से ज्यादा x को कंपेयर करना है, then you could look at using the matrix plot. I go to graph, I go to matrix plot. अभी हम सिंपली यूज कर रहे हैं. So मेरा एक y है, दो x's हैं. So let's say my x is production and x is
Y is total breakage, and I have another X which is my machine A. I press OK. It draws multiple scatter plots at the same time. Everyone can see this? Uh, Numeric. Yes. This will work best when it is continuous. अगर वो तो आपको ज्यादातर बार आंख से दिखाई दे देगा, बट इफ यू वांट टू डू फर्दर थिंग्स यू कैन ऐड लॉट ऑफ आइटम्स हियर. आप ग्रिड लाइन वगैरह ऐड करके, रिग्रेशन फिट ऐड करके देख सकते हो whether the impact is positive or negative. Or what did I do? Right click, add regression fit. सिंपल है ये दोनों. Let's move forward till we receive Shalvi's data. Then you have your CYDX mean. जब आपके पास मीन का डेटा हो, the preferred graphs will always be main effect, interval plot and interaction plot. These will be the three preferred graphs for all ANOVA, 2T test, etc. मेन इफेक्ट प्लॉट पे मैंने क्लिक किया, मैंने इसको y बता दिया, बोले टोटल ब्रेकेज. ओहो, टोटल ब्रेकेज which was my continuous data versus couple of 2-3 factors which are discrete data. Pressed OK. इसने मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया. ये मीन प्लॉट करता है. So let's start reading them. So for this, ये प्रोसेस नॉलेज टेस्ट के रिजल्ट्स हैं. सो जो आदमी मेरे प्रोसेस नॉलेज टेस्ट में फेल हो जा रहा है उसका ब्रेकेज यहां पे है. कैन यू गाइस सी दिस? When the and breakage for people who've passed the exam is this. क्लियरली बता रहा है जो लोग फेल कर रहे हैं उन्होंने सिस्टम की बाट लगा रखी है. So it is clearly telling me that people who are passing my process knowledge test are doing much better in terms of breakage. Breakage में lesser will be better. Everyone? तो यहां मुझे ये बता रहा है कि जो पास हो रहा है उसका ब्रेकेज कम है, जो फेल हो रहा है उसका ब्रेकेज ज्यादा है. Similarly, if you see oven, 3 types of ovens we are using, A, B and C. B का ब्रेकेज कम है, C का ब्रेकेज ज्यादा है. Then you have vendors for Maida, and I see Kalka ji as a vendor is doing much better than Panwar and Bika ji. Can all of us see this? कितना अच्छा टूल है when you are doing the improve phase of Six Sigma. अगर आप अपना इम्प्रूवमेंट प्लान इस फोटो के साथ चिपकाने लगो कि मुझे प्रोसेस नॉलेज टेस्ट को और स्ट्रिंजेंट करना है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, ये देख ले जो फेल हो रहे हैं उनका वो ब्रेकेज में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. एवरीवन, दिस इज पार्ट ऑफ
ANOVA मेन इफेक्ट दिख रहा है क्लियरली? नो, हाँ सिंगल एक्स के साथ चलेगा, मतलब वाई और एक्स दोनों होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। नहीं, क्वांटिटी है, किलो में है ब्रेकेज। अब ये 3 वेंडर्स हैं, मुझे दिख रहा है पनवार बहुत ज्यादा, पनवार से जब मैं बिस्किट्स बनाता हूँ ज्यादा टूट रहा है, कालका जी वाला कम टूट रहा है, बीका जी वाला कालका जी से थोड़ा खराब है। क्लियर है? फॉर ऑल योर अनोवाज एंड योर टूटी टेस्ट, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में यही बनता है। ठीक है, if you want to see permutation combination of your factors, you can draw the multivariate chart. दिख रहा है multivariate option? I have my y, which is my breakage quantity in kilos. Then I start using my x's. मुझे वेंडर फॉर मैदा, ओहो ये परसेंटेज आ गया, वेंडर फॉर मैदा कुठे गेला, वेंडर फॉर मैदा एंड कुछ और कर देते हैं, रिजल्ट। ओके, अब ये ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, जिनका रिजल्ट फेल और पास आया, अब वो अलग अलग वेंडर का मैदा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन किसमें वो सबसे कम तोड़ते हैं, किसमें सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, वो आपको क्लियरली दिखा रहा है। Let me make it a little complex for you to assess. Maybe. अब ये देखो, ओवन सी में जब हम ये वाला मैदा इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज दिस क्रॉस वाला, पनवार, जब हम पनवार का मैदा इस्तेमाल करते हैं तो ओवन सी में सबसे ज्यादा ब्रेकेज उसी का होता है। ओवन सी में सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है, ये कालका जी, उससे थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है बीका जी। कालका जी तीनों में अच्छा है, लेकिन कालका जी बेस्ट, ये कौन सा है, ओवन बी, ओवन बी में ये कौन सा है, ये क्रॉस वाला। तो पनवर और पनवार, वॉट एवर वी यू वॉन्ट टू कॉल इट, व्हेन आई यूज हिम इन ओवन बी, बेस्ट प्रोडक्शन है भाई। हो गया, हो गया, इम्प्रूव का प्लान मेरा क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है। इस वेंडर से बात करो, कैन ही गिव अस मोर प्रोडक्ट, हम इसी का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। शायद उसमें भी दिक्कत है। हम्म, हो सकता है कि कॉम्बिनेशन की वजह से भसड़ हो रही हो भाई। इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि
इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई कि वेन एवर यू आर डूइंग वन वे अनोवा, वो थोड़ा डेंजरस है बिकॉज इट हाइड्स द इंटरैक्शन इफेक्ट। सो आपको अनोम या टू वे अनोवा जैसी चीजें समझनी चाहिए जिससे आप प्रोसेस का इंटरैक्शन भी समझ सको। So you should graduate yourself to knowing more ANOVAs like this one and two way balanced GLM, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई एम ओनली लुकिंग एट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भाई। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इस वाले ओवन के साथ कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, इस वाले के साथ कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, इस वाले के साथ कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। Whatever else you want to deduce from this, please feel free। इसका काम ही यही है कि ये आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन देता है। आप चाहो तो इसमें भी और कुछ ऐड कर दो। वो कैसे पता चलेगा डेटा से? वो वो सब तो आई एम होपिंग दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल ऑफ दैट। अगर आपका आपके मेजरमेंट सिस्टम में कोई भसड़ है, कुछ वैसे प्रोसेस इश्यूज हैं, वो सब तो आप फिक्स करके ही आए होगे। या ये आपको वो फूड दे रहा है टू इन्वेस्टिगेट फर्दर? कर लो इन्वेस्टिगेशन इफ यू वांट। नए वाले ब्लैक बेल्ट एग्जाम में यही सब पेपर में है क्वेश्चंस। करेक्ट ना। ठीक है, ये सिंपल है। दिस वाज एज पार्ट ऑफ योर स्टैट्स क्वालिटी टूल्स मल्टीवेरी चार्ट। ना, पास फेल मैंने डाल दिया, एक नया फैक्टर ऐड कर दिया था मैंने। हम यहाँ सोच के बैठे थे कि ओवन से फर्क पड़ रहा, लेकिन जैसे ही उसमें ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन डाल रहे हो तो देख रहे हो कितना डिफरेंस हो जा रहा है प्रोडक्शन में। यू मे वांट टू सी दिस। आई रिमेंबर माय ओन टाइम, मैं एक हैंडलिंग टाइम का प्रोजेक्ट कर रहा था विद एयरटेल प्रोसेस, एंड आई फाउंड दैट हम हैंडलिंग टाइम इंप्रूव करने के चक्कर में पड़े थे। व्हेन वी सेग्रीगेटेड द डेटा बाय मेल फीमेल एंड what time of the day it was, we found that handling time शाम में फीमेल्स का बहुत हाई हो जाता था। ये पंजाब का कॉल सेंटर था, तो वहां मेन वुड कॉल एंड वुड नॉट हैंग अप ऑन वीमेन। वो बिल्कुल एकदम उसी लड़की से बात करने के लिए फोन ही करता था, और हमारा प्रोसेस ये कहता था कि द गर्ल कुड नॉट डिस्कनेक्ट द कॉल। तो इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट में हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आया था। तो आपको जब आप डेटा एनालिसिस करोगे ये सब चीजें निकल के आनी चाहिए ना। सिंपल है ये, आगे बढ़े। मैं आपको मल्टीवेरी चार्ट 2-3 दिन पढ़ा सकता हूँ। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल टूल। So what you were drawing a scatter plot. So total handling time versus what? ACW.
ओ गॉड, दिस इज तो आर स्क्वायर 100%। हाँ, तो इसमें तो आपको क्लियर बता रहा है कि उसी को ठीक करो। ये परफेक्ट मैथ्स है। Everyone, can you see this regression table on my regression case in my minute app? यहाँ आपको दिख रहा है ये स्टार आ रहा है। स्टार आने का मतलब होता है ना कि इतना परफेक्ट रिलेशनशिप है कि वो मैं वैल्यू डिड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ। इट इज अ परफेक्ट रिलेशन, आर स्क्वायर इज 100%। तो मतलब ये तो एक एक भी डेटा को जरा सा ऑल्टर कर दो, 5.46 है ना, तो इसको 5.45 कर देते हैं, बस हो गया। अब कर लो, अब जो बोलोगे वो करेगा। क्योंकि परफेक्ट मैथ्स के केस में रिग्रेशन वो बोल रहा है मुझे लाइन रिड्यूस करने के लिए, तुमने बोला पहले से लाइन का ही इक्वेशन दे रखा है तुमने, परफेक्ट रिलेशनशिप आ रहा था, दैट इज वाई। हाँ, बट कम से कम भी करेक्ट। ऑब्वियसली मैथमेटिकल फंक्शन बना हुआ है सारा का सारा। डेटा डेटा विजुअलाइजेशन टूल की क्लास कंप्लीट कर लें। लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी वर ट्राइंग टू अकम्प्लिश। जब जब ऐसे इक्वेशंस बनेंगे तो मैथ्स तो होगा ही होगा, आपको थोड़ा सा डेटा तो ऑल्टर करना ही पड़ेगा, बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू एवरेज हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम निकलता कैसे है, उन सारे को ऐड कर दोगे तो हैंडलिंग टाइम होगा। वही तो मैं मैथमेटिकल फंक्शन बार बार बताता हूँ कि वो सबसे प्रोमिनेंट फैक्टर होते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप वाइज रिग्रेशन करके, इसीलिए मल्टीपल रिग्रेशन नहीं करना चाहिए। दैट विल बी अ सेपरेट टॉपिक दैट विल डिस्कस दैट सम अदर टाइम। यस, कम बैक। So we were saying that when you have the ANOVA सीरीज, the ANOVA फैमिली, ANOVA के सिबलिंग्स के साथ आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आपको आपके पास इंटरवल प्लॉट, मेन इफेक्ट प्लॉट, इंटरेक्शन इफेक्ट प्लॉट जैसे टूल्स हैं। इंटरवल प्लॉट या तो सिंपल, ये सिर्फ y पे होता है, ये आपको आपके y का कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन दे देता है। अगर इसको अपने फैक्टर्स के साथ इस्तेमाल करना है आपको, तो यू विल नीड टू यूज द सेकंड वाला। और ये चारों ऑप्शन बहुत ध्यान से देखो यार। पहला वाला ऑप्शन क्या है, 1y। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, मल्टीपल वाइज। तो 1y सिंपल, 1y विद ग्रुप्स। तो ये वाला ऑप्शन, से दैट अगेन, it is almost everywhere, it is almost everywhere। तो ये तीनों का कॉन्फिडेंस इंटरवल इसने ड्रॉ करके दे दिया। ग्रेट ग्राफिकल टूल टू यूज व्हेन यू आर यूजिंग द अनोवा सिबलिंग्स। करेक्ट, करेक्ट। जब जब कॉन्फिडेंस इंटरवल ओवरलैप करता है तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है? क्या इन्फ्लुएंस है?
when confidence intervals overlap, what is the inference? Null hypothesis. Correct. The means are not significantly different than each other. Simple है. Questions, anyone? आगे बढ़े. बॉक्स प्लॉट. बॉक्स प्लॉट कब बनाएं? एक है आपके पास सिंपल, मतलब ये सिर्फ y पे बनता है. When you touch this, it gives you a lot of statistics. It tells you आपका n कितना है, मतलब total number of data points under consideration. Whiskers कहां से कहां लाई करते हैं? Whisker का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा. Everyone understands this concept? No, it is. These are outliers, Manish. Math. There is a mathematical formula for outliers. Data. इसीलिए कितनी बार ऐसा होगा कि जब आप मीडियन कैलकुलेट करने लगोगे, क्वार्टाइल कैलकुलेट करने लगोगे, एक्सेल में और मिनिटैब में दोनों में वेरिएशन आएगा, नंबर्स में वेरी, बिकॉज एक्सेल वाला आउटलायर नहीं कंसिडर करेगा, which will mean that it has considered those data points, while मिनिटैब नहीं कंसिडर करेगा, इसलिए मेरा वैल्यूज डिफरेंट आएंगी. यहां तक हम साथ साथ हैं, which means that अगर ओके, सो वी वर सेइंग दैट बॉक्स प्लॉट का बेसिक पर्पस क्या है? ये हमारे डेटा को, पोजिशनल डेटा को पोजीशन के बेसिस पे तोड़ देता है. सो इफ यू रिमेंबर योर बेसिक स्टेटिस्टिक्स का क्लास, वी वर सेइंग दैट जब आप पोजिशनल इंफॉर्मेशन गैदर करने लगते हो तो वो आपके डेटा को 4 टुकड़ों में तोड़ देता है. मिनिमम टू क्वार्टर 1, correct, quartiles. So minimum to quarter 1, quarter 1 to median, median to quarter 3, quarter 3 to maximum. यहां भी आपको वही है. So you have a whisker of 5.85, which means the minimum data that I have is 5.85. सबसे छोटा डेटा मुझे कितना मिला है? 5.85. In 25% of the data, 25% of days in this case, I have had a breakage between 5.85 to 9.71. 25% डेटा होगा हर क्वार्टर में. सो मिनिमम कितना है मेरा? 5.85. शालिनी, आर यू विथ मी? सो मेरा मिनिमम 5.85 होगा और क्वार्टर 1 9.71 होगा. सो 25% ऑफ माय डेटा विल बी बिटवीन 5.85 टू 9.71. 25% of my data is between 9.71 to 11.28. 25% of my data between median and third quartile, which means 11.2 से लेके 12.89 तक. And 25% of my data between Q3 and maximum, which is 12.89 से 16.82 तक. Yes, sir. और जब मुझे n मालूम है, just 1 second मनीष, जब मुझे n मालूम है, I can clearly say how many data points lies in each bin, each डब्बे में मेरे पास कितना डेटा है वो मुझे क्लियरली पता चल जाएगा. करेक्ट. यस मनीष, यू वर सेइंग समथिंग. ये मेरा जो विस्कर आ रहा है 16.82, ये उससे भी ऊपर जा रही है. नहीं, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है आउटलायर का. आई डोंट रिमेंबर. राइट इट डाउन एवरीवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस.
नहीं होंगे। लिख लीजिए ये फॉर्मूला। अपर साइड में कैसे निकलेगा? Q1 माइनस 1.5 टाइम्स IQR एंड Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR। मैं टाइप कर देता हूं उस पर। इसके बियॉन्ड जाने पे हम उसको similarly if you are doing y based on x's then you go to with groups वाला ऑप्शन। कैन यू प्लीज म्यूट? मैंने y ले लिया और जिस x को मैंने मूड्स मीडियन से कंपेयर किया था वो ले लिया। ये अलग अलग बॉक्स प्लॉट्स बना देगा। सो जब आप मीडियन वाले टेस्ट कर रहे हो तो यू शुड यूज बॉक्स प्लॉट्स। एवरीवन क्लियर है? से दैट अगेन। एक और टूल है बट दैट इज नॉट योर इन स्कोप, तो आपके लिए तो मीडियन बॉक्स प्लॉट इकलौता ऑप्शन है। ठीक है, ये सिंपल है। यहाँ भी इसमें देखो यू हैव several options here when you are using your box plot. 1y multiple y, simple with groups, simple with groups. हाँ, लगभग सारे प्लॉट्स में आएगा ये विशाल। सिंपल है। रमन, शालिनी, बिकॉज आप लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं, बाकी लोगों ने इस पे PhD कर लिया है। Obviously one of the most powerful will always be histogram. Simple with fit, with outline and group, with fit. इसको जब हाँ जी तो मुझे समझा देना किसी दिन, मैं जो कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा। सिंपल तो है ये तो बहुत सिंपल है। श्योर श्योर श्योर। सो एक आपके पास हिस्टोग्राम में ऑप्शन है विद फिट वाला, एक विदाउट फिट वाला। हिस्टोग्राम को समझने के लिए, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्यूनेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्टोसिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक बार उसको पढ़ लेना एंड देन आई विल बी एबल टू गिव यू अ गुड इंसाइट इनटू बोथ। डेटा के स्क्यूड होने का क्या मतलब, डेटा में डेटा का कर्टोसिस को कैसे रीड करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ये मल्टीपल वाला है। सो y हो गया मेरा एंड देन आई हैव डिस्क्रीट फैक्टर्स। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हो, बट प्राइमरली इसका यूसेज यही है दैट यू आर लुकिंग एट अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। इस केस में तो वैसा नहीं निकल के आ रहा है। लेट मी सी इफ आई कैन गिव यू डिफरेंट डेटा। ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। अगर यही शेप्स थोड़े डिफरेंट होते, यू कुड हैव लुक्ड एट सबका स्प्रेड का कंपैरिजन, सबकी सेंट्रल टेंडेंसी का कंपैरिजन,
you should realize that पीक के पास सेंटर होना होगा, so you can then analyze कि किसका मीन कहाँ जा रहा है. सिंपल है ये. बताएगा वो तो बताएगा ही. आप उसमें उस पर क्लिक कर लोगे तो आपको बता देगा किस मशीन का है वो, किस फैक्टर का है वो. एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन टूल जो हमारे पास है वो है टाइम सीरीज प्लॉट. When you do time series, you go to time series, you are essentially looking at behavior of data with time. तो टाइम सीरीज बनाने में हमेशा टाइम स्केल डालना चाहिए ऑफ द टाइम स्टैम्प ऑफ द डेटा. थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया. लेट मी पिक अप डेटा फॉर अ स्मॉलर ड्यूरेशन. ये सब ऑप्शंस क्लिक कर करके देखो. Absolutely, you should. तो वो तो आपको जब आप या रमन नहीं प्लीज. You should shrink the data. You should randomly pick up data from it. आप उसको summarize मत करने लगना. Daily data may lose its meaning when you when you combine it and showcase. When you summarize it and put in the weekly metric for the same. बिल्कुल बिल्कुल. देखो एक बात समझ लो यार. when you act God, when you kill some information, you please understand that when you kill some information will be lost. आज जब हम कह रहे हैं कि मुझे सिम्टम दिखेगा तो ही मैं कोरोना की टेस्टिंग करूंगा, उसका आउटकम समझ ले भाई. कुछ कोरोना पेशेंट अनडिटेक्टेड बाजार में घूम रहे हैं, अपनी फैमिलीज को और अपने अड़ोसी पड़ोसी को कोरोना का इम्पैक्ट दे रहे हैं. But yes, it is not always possible. Yeah, Manish, you're saying. But there will be confounding. Please always understand that when you reduce data, there will be confounding. There will be some hidden information in that. So if you are willing to hide some information, please go ahead. But थोड़ा तो गलत information, I will not say गलत, थोड़ा तो information छुप जाएगी पक्का. तो थोड़ा सा पहले उसकी टेस्टिंग कर ले कि मंथ ऑन मंथ कोई वेरिएबिलिटी तो नहीं है, कहीं कोई अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है. मैं एक बार उन 5 महीनों का मीन कंपेयर करके देख लूंगा, मीडियन कंपेयर करके देख लूंगा. इफ आई डोंट सी टू मच वेरिएबिलिटी बिटवीन मंथ एंड मंथ, then I can take samples, otherwise I will try and refrain. और अगर मेरे पास टूल है भाई तो 6 महीने का अलग अलग निकाल लेना. जब कभी भी आप फ्रैक्शनल इंफॉर्मेशन लोगे, जब आप डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ोगे तो वहां एक कॉन्सेप्ट है, वी कॉल समथिंग एज फैक्टोरियल डिजाइन, वी कॉल समथिंग एज द कंप्लीट डिजाइन. तो जब छोटा डिजाइन लोगे तो बहुत मुमकिन है कि कंफाउंड होगा डेटा, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन छुप जाएगी, वो तो पक्की बात है. Let's come back to our minute. So time series will give you very valuable information
of the performance of your data with time. यही आप बाद में रन चार्ट बनाते हो, आप इसी का कंट्रोल चार्ट बनाते हो. तो अगर आपके पास कंट्रोल चार्ट की एक्सपर्टीज है, प्लीज फील फ्री टू यूज कंट्रोल चार्ट्स एवरीवेयर. डू नॉट कन्फाइन योर कंट्रोल चार्ट्स टू स्टडी ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस ओनली. उसको स्पेशल कॉज स्टडी में भी लगा दो, उसको टाइम सीरीज प्लॉट का रिप्लेसमेंट भी बना दो. टाइम सीरीज प्लॉट एक एडिशनल चीज कर सकता है जो कंट्रोल चार्ट में हम नहीं करते हैं, वो है फोरकास्टिंग. So when you do trend analysis, or maybe some other day, time series बहुत important graph है. And when you start to break it into different components, when you start to draw time series based on days, months, weeks, कुछ बहुत अजीब अजीब इंफॉर्मेशन ये देने लगेगा. So इसमें भी जो options हैं with group, when you start to compare your y against the various factors that you have, it will start to tell you कहाँ क्या भसड़ हो रही है. Whether your process improves with time or it starts doing bad with time. खास करके बीपीओ जैसे बिजनेसेस में ना बहुत मुमकिन है कि आपका मंडे फ्राइडे का डेटा बहुत अजीब सा हो. योर प्रोडक्टिविटी गोज फॉर अ टॉस एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे. शायद वो वीकेंड का इफोरिया शुरू हो जाता है. So you may want to study the seasonality, based on time, how does your process perform. वो एक बहुत important study है that you may want to conduct. So go to control charts and introduce stages in your data. Other than Shalini, have you done your control phase? कंट्रोल चार्ट समझ में आता है? कंट्रोल चार्ट वाला वीडियो अच्छे से देख ले, बिकॉज ये स्टेजेस वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है. मनीष एक बार स्टेजेस वाला बना के देख, वेदर द मीन एंड द कंट्रोल लिमिट्स आर स्टिल द सेम फॉर एवरीवन. It will give you a lot of very meaningful information. यहां तक सिंपल है गाइस. So you've done a few graphical tools today. You've gone through scatter and matrix. You've looked at box plots. You have done the main effect, interaction effect plots. You have looked at the multivariate chart. इन सबको इस्तेमाल करो. Once you have finished them, then we can take a deeper dive into each one of them. They can do so much more. And God lies in details. जितनी बारीकी के साथ इन टूल्स को समझोगे, लाइफ उतनी सिंपल हो जाएगी. And you should always remember what Abhijit started the discussion with. The more you know that you don't know. जितना पढ़ोगे उतना लगेगा कि और नहीं आता है. So if जो ग्राफिकल टूल्स आपको पढ़ने हैं वो तो मैंने कंप्लीट करा दिया. If you have some questions, please ask. बहुत सारे होते हैं यार. हाँ, क्रिस्टल बॉल, मोंटे कार्लो सिमुलेशन, बहुत कुछ होता है यार. लेकिन मिनिटैप जैसा कुछ नहीं है. मिनिटैप से ब्यूटीफुल
यही है टाइम सीरीज के नीचे वाले जो अभी जो बार खुले हुए हैं सारे, ट्रेंड एनालिसिस, डिकम्पोजिशन, मूविंग एवरेज, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, डबल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, विंटर्स मेथड, differences in lags, auto correlation, partial correlation, cross correlation, arima, sarima. Mr. Thaplial, this is the step number 1. हाँ, maybe even not there, brother. So trend analysis मतलब forecasting अगर आपको करनी है, let's say I want to forecast total breakage, तो मैं ये चारों मॉडल्स डेवलप करूंगा और चारों मॉडल्स के जो एरर निकल के आएगा, if you see here you are getting 4 values: MAPE, MAD, MSD. These are mistakes. These are 4 kinds of mistakes that happen. तो आपको चारों मॉडल डेवलप करने हैं, मिस्टेक्स को कंपेयर करना है, जिसका मिस्टेक सबसे छोटा होगा वो मॉडल हम एक्सेप्ट कर लेंगे. लेट मी किल द अदर ग्राफ्स फर्स्ट. yes, anything at all, anything, कुछ भी कर सकते हो यार. Nothing. Gantt chart is a project management tool of telling timeline on projects. ये देखो तीनों का कंपैरिजन, इन दोनों में देखो कि किसका एरर ज्यादा है. इसका जो कम है वो बेटर है, जिसको ज्यादा है उसका मर्डर कर दो, उसको हटा दो. अगर कभी कॉन्ट्रडिक्टिंग हुआ तो मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर को प्रोमिनेंस दो. लाइक इन दिस केस आई सी मेप एज 17 एंड दिस एज अ मेप ऑफ 18, तो मैं इसको बंद कर दे रहा हूं भाई. नाउ आई विल कंपेयर बोथ ऑफ दीज, 1794 एंड 1767. खत्म. अभी तो बेस्ट फिट यही आ रहा है. अगर मैं इसको बेस्ट फिट मान लूं तो मैं इसको सीधा कहूंगा भैया जनरेट कर दे फोरकास्ट एज मेनी एज यू वांट. व्हाट 15 20 फोरकास्ट डेवलप कर दे. हो गया फोरकास्ट डेवलप. वैल्यूज देखना है तो यहां आ गया आपके फोरकास्टेड वैल्यूज. ग्राफ में डालना है तो यहां ग्राफ में आ गया फोटो. फिनिश्ड. थपलियाल साहब हो गई फोरकास्टिंग. But still MAPE of 17 is very high. अभी भी तुम्हारा मॉडल ये कह रहा है कि मैं सच से 17% दूर हूं, which is very scary. तभी और जो बाकी मॉडल्स हैं उन मॉडल्स को एक्सप्लोर करने में लगो. Decomposition, moving average, simple exponential, double exponential, winters,